आइए अब आपको सीधा राज्यसभा की संसदीय कार्यवाही में लिए चलते हैं। When I occupied this chair, that every member of parliament in this house occupies a distinct position and all are equal. But 4 persons who are present here, with respect to them, I will first listen to them and then look at the rule book. And those 4 honorable members were Leader of the Council of States, he is a part of this house, Leader of the Opposition, and 2 former Prime Ministers we have. For other members, they have the same right, but they have a slight different approach in the sense that I will not ask Mr. Khadge, Leader of the Opposition, surrender this rule. I will hear him and then go to the rule. For others, I will say which rule. So that's a, and the House, I'm happy to say, agreed at that point of time. So sir, not the Prime Minister, the 4 were of this House. तो आप मेरे इसीलिए मैं ये सोच के उठा था कि मुझे मौका मिलेगा और बात करने के लिए। मैं पूरे अपने इश्यूज को सदन के सामने रख रहा था और जब 50 लोग अपना 267 पे दिए थे तो मुझे अगर बोलने का मौका भी नहीं मिला, ठीक है, लेकिन कम से कम जब मैं बोल रहा हूं मेरा माइक अचानक बंद करना ये मेरा प्रिविलेज है। अब उसको प्रिविलेज को धक्का मेरा अपमान हुआ है, मेरे रेस्पेक्ट को आप मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को उन्होंने चैलेंज किया है और सरकार के इशारे पे अगर सदन चला तो मैं समझूंगा डेमोक्रेसी नहीं है। Nothing will go on record. Nothing will go on record. Nothing will go on record. The House is not in order. No, sir. Please sit. Sir, one second. I appeal to the Honorable Leader of the Opposition to take seat. Nothing will go on record is my directive. I have directed House not being in order. Nothing will go on record. Take your seats. Take your seat. I request the honorable members to first take your seat. Take your seat. First, let the House be in order first. Take your seat. Take your seat. Take your seat. That is under directive. I said so. I said so. Take your seat. 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 Would you all, one second, Mr. Chidambaram, take your seat. Take your seat. Take your seat. Honorable members, may I request you all to please take your seat. Take your seat. Take your seat. पहले take your seat. मेरी ओन है. मिस्टर सुरजेवाला, चलो आप एक बार बैठिए सीट पे जाइए. बैठिए. Honorable members, Mr. Surjewala, if you think you can make a point beyond what LOP can make, I can tell you, you are mistaken. Can't you believe in your LOP? No. Can't you believe in your leader of the opposition? He's on the floor. Why don't you take your seat? Why don't you all go to your seat? No. First, take your seat. Take your seat. Take your seat. Please, you know it. Nothing is going on record. Nothing is going on record. Why use lung power? Let the leader of the opposition. No. Which power? Sir.
then, okay, nothing is going on record. Please take your seat first. I'll tell you. Oh, one second. I had given floor. Honorable members, please take your seat. It's not a laughing matter, Mr. Jairam Ramesh. आप ऐसे, what is this? You have forgotten where you are. You are in the house. We are transacting serious business. Now please take your seat. Take your seat and resume. Honorable members, वो तो तब से पीछे बैठेंगे ना, आपके देखिए आपके पीछे सब खड़े हैं. अब आई एम हैप्पी कि मेरे पीछे खड़े अगर नहीं हो तो क्या मोदी के पीछे खड़े हो? Nothing goes on record. Nothing goes on record. Nothing goes on record. Honorable members, silence. आपने क्या कर दिया? Honorable members, okay, please take your seat now. Ask them to obey silence. Take your seat. Silence. Please maintain decorum. Please. Honorable members. I request Leader of the House and Leader of Opposition to generate discipline and decorum in their members. Please take your seat. All of you take your seat. Take your seat. The House is adjourned to meet at 12. इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा की संसदीय कार्यवाही स्थगित हो गई है। राज्यसभा में आज मणिपुर के मुद्दे को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। लोकसभा की कार्यवाही पहले ही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित हो चुकी है, लेकिन अब राज्यसभा की कार्यवाही भी दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, वो खड़े हुए, वो अपना बयान दे रहे थे। उन्होंने ये कहा कि उनका असम्मान हुआ है, उनके माइक को ऑफ कर दिया गया है। जगदीप धनखड़ यानी चेयर की ओर से ये कहा गया, इस वक्त रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं जा रहा है। कि इस मुद्दे को लेकर यानी मणिपुर हिंसा पर चर्चा को लेकर विपक्ष खुद कितना गंभीर है, उसकी एक मिसाल आपके सामने रखती हूं। जब सदन में इतना हंगामा हो रहा था, जयराम रमेश को भी चेयर की ओर से फटकार लगाई गई कि हम एक सीरियस बिजनेस के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और आप हंस रहे हैं। हमें इस सदन की गंभीरता को और गरिमा को बनाए रखना है। लेकिन इन तमाम हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही के बाद अब राज्यसभा की कार्यवाही को भी दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी भी जुड़ी हुई हैं इस खबर पर। राज्यसभा में भी कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। विजय लक्ष्मी, आखिर ऑपोजिशन की रणनीति क्या है? क्यों हाउस इतना डिस्ट्रप्टिव नजर आ रहा है जब चर्चा के लिए तैयार है? और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाने की विपक्ष तैयारी कर रहा है, तो फिर सदन के भीतर यह हंगामा क्यों?
देखिए मीनाक्षी, विपक्ष की रणनीति दोनों हाउसेज में अलग है। लोकसभा में विपक्ष कोशिश करेगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन के पटल पर आने के लिए बाध्य किया जाए। वहीं राज्यसभा में 267 ला करके विपक्ष सरकार को इस बात के लिए कंपेल करना चाहता है कि एक ऐसे रूल के तहत चर्चा हो जिसमें वोटिंग का प्रावधान हो, क्योंकि मणिपुर एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है और कांग्रेस पार्टी उम्मीद कर रही है कि अगर कोई रेजोल्यूशन आएगा तो राज्यसभा में जो नॉन एनडीए और नॉन इंडिया आप कह लीजिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो उस रेजोल्यूशन के विरोध में वोट नहीं कर पाएंगी। ऐसे में वो सरकार को वोटिंग मांग करके चर्चा के बाद जो है वो एम्बैरस कर सकते हैं कि सरकार के खिलाफ जो है वो ज़्यादा वोट पड़े। तो इन राज्यसभा में सरकार की रणनीति है 267 के तहत चर्चा हो, उसमें लंबी चर्चा होती है, पूरा मौका बोलने का तमाम राजनीतिक दलों को मिलता है और चर्चा के बाद रेजोल्यूशन पास होता है, वोटिंग का प्रावधान होता है। उम्मीद विपक्ष यही कर रहा है कि वो और अन्य दल जो नॉन एनडीए पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी रेजोल्यूशन पर अपने साथ कर सकते हैं और सरकार को एम्बैरस कर सकते हैं। लोकसभा में रणनीति नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाध्य किया जाए, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही देना होगा सदन के पटल पर आने का। तो राज्यसभा में बिल्कुल विजय लक्ष्मी, ये एक तरीके से लड़ाई 333 प्लस और 143 प्लस के बीच की है। नंबर गेम में ये बात निश्चित है कि सरकार हावी नजर आती है, लेकिन अगर सदन में इसी तरीके से गतिरोध बना रहा तो फिर मणिपुर के मसले पर चर्चा कैसे होगी, फिर चाहे वो वजह नियमों का हवाला देकर हो या फिर हंगामे का हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।